حالات جب یہاں تک پہنچ گیا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے لگیں، غیر مسلموں سے شادی کرنے لگیں اور اسلام دھرم کو چھوڑ کر مرتدہ بننے لگی، غیر مسلموں کے ساتھ خوش رہنے لگی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو پسند کرنے لگی، تو اب جا کر مسلمان ہوش میں آئے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ یعنی جب کسی مدرسے میں جاتے ہیں یا کسی اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں یا کسی مولانا صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو دینی تعلیم دیجئے، یہ بھی ضروری ہے۔ میاں، جب حالات یہاں تک آئے تب بھی اتنا ہی سا ہوش آیا کہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے؟ جی نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ دینی تعلیم بھی ضروری نہیں ہے، دینی تعلیم ہی ضروری ہے۔ آپ نے دینی تعلیم کو سائڈ شو بنا لیا ہے، دینی تعلیم کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہی نہیں، اسی لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، دینی تعلیم ہی ضروری ہے۔ آپ کی بیٹیوں میں دینی تعلیم ہی نہیں ہے، تبھی آپ کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہیں، ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں۔ دینی تعلیم ہی نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں، مرتدہ ہو رہی ہیں۔ دینی تعلیم ہی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہے، نماز کا ڈھنگ نہیں ہے، دینی تعلیم ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں اس طریقے سے مگن ہو گئے جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ میاں، دینی تعلیم ہی نہیں ہے، تبھی آپ کو مرنے کا احساس نہیں ہے، قبر میں جانے کا احساس نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے، کیونکہ دینی تعلیم ہی نہیں ہے۔ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، جی نہیں، یہ غلط ہے میاں۔ آپ نے دینی تعلیم کو بھی ضروری سمجھا، یہی وجہ ہے کہ آج حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیوی غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، آپ کی بیوی غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہیں، سر سے دوپٹہ اتار لینے میں فخر محسوس کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے دینی تعلیم کو بھی ضروری سمجھا۔ کہ دینی تعلیم بھی ضروری نہیں ہے، دینی تعلیم ہی ضروری ہے، باقی تعلیم وہ ضروری نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، باقی تعلیم جائز ہے، بس باقی تعلیم جائز ہے۔ انگریزی کی تعلیم یا اور دیگر بائیو کیمسٹری وغیرہ کی تعلیم یہ محض جائز ہے، اور دینی تعلیم، اسلامی تعلیم یہ جائز نہیں، آپ پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ دینی تعلیم، علم کا تلاش کرنا، علم کا سیکھنا، دینی علم کا سیکھنا یہ آپ پر فرض ہے میاں، مگر آپ نے اس کو فرض نہیں سمجھا، آپ نے اس کو جائز سمجھا اور دنیاوی تعلیم کو آپ فرض سمجھ بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے آپ اہتمام زیادہ کرتے ہیں، دینی تعلیم کے لیے آپ اہتمام نہیں کرتے، کیونکہ دینی تعلیم کو بھی ضروری سمجھا۔ کاش آپ دینی تعلیم کو بھی ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ دینی تعلیم ہی کو ضروری سمجھتے، تو آج آپ کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر نہیں ناچ رہی ہوتی، آج آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر مرتدہ نہیں ہو رہی ہوتی، آج آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں سے ہاتھ ملا کر فخر نہیں محسوس کر رہی ہوتی، آج آپ کی بیٹیاں سر سے دوپٹہ اتارنے میں فخر محسوس نہیں کر رہی ہوتی، مگر افسوس، صد افسوس، آپ نے دینی تعلیم کو ضروری سمجھا ہی نہیں۔ آپ نے تو دنیاوی تعلیم کو ضروری سمجھا،
आपने दुनियावी तालीम को दीनी तालीम पर तरजीह दी, फौकियत दी। यही वजह है कि आप दुनियावी तालीम के लिए ज़्यादा एहतमाम करते हैं, दीनी तालीम के लिए एहतमाम नहीं। आप कहोगे आप गलत कह रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप दुनियावी तालीम के लिए कैसे ज़्यादा एहतमाम करते हैं। देखिए, जब दुनियावी तालीम की बात होती है तो आप किसी इंग्लिश मीडियम में जब आपका बच्चा 3 साल 4 साल के हो जाते हैं तो आप अपने बच्चे को किसी अच्छे से अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, अंग्रेज़ी मीडियम में एडमिशन करवाते हैं और ज़्यादा फीस देकर स्कूल अंग्रेज़ी मीडियम में आप एडमिशन करवाते हैं। और करवाने के बाद सुबह सुबह आप उसको तैयार करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं डेली और सुबह भेजते हैं। बच्चे जब 7 बजे जाते हैं, कभी 8 बजे जाते हैं, 1 बजे 12:30 बजे वापस आते हैं। उसके बाद आप खाना पीना खिलाकर ट्यूशन लगा देते हैं। फला अंग्रेजी का ट्यूशन आ रहा है, ट्यूशन वाला आ रहा है, फला आ रहा है, फला सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला। इस तरीके से आप ट्यूशन में उसको मगन कर देते हैं। अब उसके बाद जब वो ट्यूशन पढ़कर आती है, अब कई ट्यूशन लगवाते हैं। उसके बाद जब वो पढ़कर चूर हो जाती, थक जाता है बच्चा, दिमाग बोझल हो जाता है, तब जाकर आपको एहसास होता है कि आप अरबी पढ़ने के लिए 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए मस्जिद भी भेजा जाए। जब सुबह से चूर हो चुका पढ़कर, तो 50 रुपया देकर, 100 रुपया देकर, 150, 200 देकर अब आपको होश आ रहा है कि अब मस्जिद भी भेजा जाए, किसी हाफिज जी को बुलाया जाए या उनके पास भेजा जाए। बताइए, आपने ज्यादा एहतमाम किस तालीम के लिए किया? आपने ज्यादा वक्त किस तालीम को दिया? दीनी तालीम को या दुनियावी तालीम को? दुनियावी तालीम 5 घंटा स्कूल में अलग देते हो, 1-1 घंटे के 2-3 ट्यूशन अलग पढ़वाते हो, और उसके बाद जब बच्चा चूर हो जाता है, थक कर परेशान हो जाता है, दिमाग बोझल हो जाता है, तब होश आता है कि आप दुनियावी तालीम के लिए आधा घंटा मस्जिद में भेज दे और कहते हो कि दीनी तालीम भी जरूरी है। नहीं मियां, अगर वाकई आप दीनी तालीम को तरजीह देते, वाकई आप दीनी तालीम से मोहब्बत करते, वाकई दीनी तालीम को आप फर्ज समझते, तो जो एहतमाम आपने अंग्रेजी तालीम के लिए आपने किया था, वो एहतमाम आप दीनी तालीम के लिए पहले करते और कम अहमियत अंग्रेजी तालीम को देते, दुनियावी तालीम को देते। मगर नहीं, यहां उल्टी गंगा बह रही है, यहां उल्टी गंगा बह रही है कि जब 3 साल का आपका बच्चा हो जाता है, आप उसको अंग्रेजी तालीम देने के खातिर, दुनियावी तालीम देने के खातिर आप यहूदी के स्कूल में, नसरानी के स्कूल में, क्रिश्चियन के स्कूल में आप एडमिशन करवाकर पहले यहूदियत का शराब पिलाते हो, नसरानियत का शराब पिलाते हो, अंग्रेजियत का शराब पिलाते हो। उसके बाद जब वो शराब पी चुका होता है, जब अंग्रेजी कल्चर का आदी हो चुका होता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल में अब आपको होश आता है, तो आप इस्लामी दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। मियाँ, जो शराब में मस्त हो जाता है वो फिर दूध नहीं पीता। क्यों ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है? जो शराब में मस्त हो जाता है, जो शराब का आदी हो जाता है, उन्हें दूध पसंद नहीं आता। यही वजह है कि जब 7 साल की, 8 साल की, 9 साल के बच्चे या बच्ची को जब इस्लामी तालीम पढ़ाने के लिए किसी इस्लामिक इंस्टीट्यूट में आप डालते हो, फिर उनको वो तालीम समझ में नहीं आती आपके बच्चों को, फिर उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि वो यहूदियत का जाम, नसरानियत का शराब, ईसाइयत का जाम पी चुका होता है। अब उसी कल्चर में जीने का शौक रखता है। अब उसे दुपट्टा पहनना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इस्लामिक इंस्टीट्यूट में दुपट्टा पहनाया जा रहा है, इस्लामिक इंस्टीट्यूट में इस्लामिक कल्चर सिखाया जा रहा है। जनाब, उसको तो आपने पहले यहूदियत का शराब पिलाया है,
नसरानियत का जाम पिलाया है। अब वो दुपट्टा पहनकर इस्लामिक कल्चर में रहकर वो तालीम हासिल करने का शौक नहीं रखती, अब उससे वो भाग रही है। तो आप कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आप कहते हैं बच्चों का दिल नहीं लगता। मियां, दिल कैसे लगेगा? दिल कैसे लगेगा? आपने तो पहले ही शराबी बना दिया उसे। अब आप, हालांकि होना क्या चाहिए मुसलमानों, होना ये चाहिए कि जब आपका बच्चा 2 साल 3 साल का हो तो पहले किसी इस्लामिक इंस्टीट्यूट में, मदरसे में, या किसी अच्छी जगह जहां इस्लामी तालीम, इस्लामी कल्चर को पिलाया जा रहा हो, वहां आप पहले उसे इस्लामी दूध पिलाते, इस्लामी कल्चर का शहद पिलाते। और जब उसके अंदर इस्लामी दूध पीकर इस्लामी कल्चर आ जाता, इस्लामी इस्लामी अंदाज आ जाता, इस्लाम से मोहब्बत हो जाती, उसके बाद आप किसी स्कूल में डालते तो अब उसको शराब पसंद नहीं आता, अब उसको अच्छा नहीं लगता शराब। पहले दूध पिला चुके होते इस्लाम का तब। लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हैं, आपने तो उल्टा कर दिया। आप पहले यहूदियत का शराब पिला दिया, नसरानियत का शराब पिला दिया, अंग्रेजियत का शराब पिला दिया, उसके बाद आप कहते हो कि बच्ची ऐसी है, बच्चा ऐसा है। जी नहीं, जी नहीं, बच्चा भी अच्छा था, बच्ची भी अच्छी थी। आपने उसे शराबी बनाया, आपने उसे इस्लामिक कल्चर से दूर किया और यहूदी कल्चर को उसके करीब करके उसे यहूदी कल्चर सीखने का मौका फराहम किया। आपने पहले कुरान की तालीम तो दे दो, पहले दीनी तालीम तो सिखाओ। आप दीनी तालीम सिखाए बगैर आप स्कूलों में डालते हो और शराबी बनाते हो और यहूदी कल्चर पिलाते हो। और आपको लगता है मियाँ कि स्कूल में सिर्फ पढ़ने जाते हैं। जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। स्कूल में महज पढ़ाई नहीं होती, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कल्चर भी पिलाया जाता है। मदरसे में पढ़ाई के साथ साथ इस्लामिक कल्चर भी पिलाया जाता है। मियाँ, किसी अंग्रेज ने आकर आपसे नहीं कहा था कि आप बगैर दुपट्टा क्या अच्छी लगती हो, आप इस तरीके से चुस्त कपड़े में अच्छी लगती हो। किसी अंग्रेज ने नहीं कहा, क्योंकि किसी अंग्रेज से आपकी मुलाकात नहीं हुई, किसी यहूदी ने नहीं कहा। ये कल्चर आपने स्कूलों से सीखा है, ये कल्चर आपने यहूदी कल्चर वाले स्कूलों से सीखा है। वहां ये तालीम दी जाती है, क्योंकि वहां जो मेम आती हैं वो बगैर दुपट्टा के होती है, क्योंकि वहां की जो मेम आती हैं, वहां के जो सर आते हैं वो अंग्रेजी कल्चर से मलबूस होते हैं, उनके अंदर अंग्रेजी कल्चर झलक रहे होते हैं। तो बच्चा शुरू से जो कल्चर देखेगा उसी कल्चर का दिलदादा होगा, उसी कल्चर को अपनाएगा। मदरसों में, इस्लामिक एकेडमी में, इस्लामिक इंस्टीट्यूट में, इस्लामिक स्कूल में जनाब जो टीचर आते हैं या आती हैं, उनके सरों पर दुपट्टा होता है, वो इस्लामिक अंदाज में होती है, इस्लामिक कल्चर से मलबूस होती हैं। यही वजह है कि इस्लामी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़कियों के सर पर दुपट्टा होता है, उनके सर से दुपट्टा नहीं उतरता, क्योंकि वो आंख खोलते ही इस्लामिक कल्चर देखती है, इस्लामिक अंदाज देखती है। तभी इस्लाम के दूध पीने वाले, यही वजह है कि इस्लामिक तालीम याफ्ता लड़कियां कभी गैर मुस्लिम के साथ नहीं भागती, कभी बेपर्दा नहीं होती, कभी उनके सर से दुपट्टा नहीं उतरता, वो टिकटॉक पर नहीं नाचती। लेकिन आपने क्या किया अपने बच्चों के साथ? आपने अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? मुसलमानों, होश में आओ।